Good morning, dear students. Welcome back to your online classes. Okay, I hope you are well. Okay, and you are well doing your work. So please stay home, stay safe. After the first term exam, now we are going to start your second term syllabus. Okay, so the chapter means the first chapter of your second term. Either you can say that and continue the 17 chapters flowering plants. From this you will start your second term syllabus. Okay, students. So now flowering plants means the plants which can produce flowers, fruits and seeds. Okay, I think all of you can see many plants in your surroundings, okay, in your atmospheres, okay. They can produce flowers, fruits and seeds, like flowers, fruits and seeds. Okay, guava trees, okay, mango trees, lemon trees, okay, strawberry plants. So there are many plants are there in your surroundings. Okay, clear? So now we'll discuss about the flowering plants. Okay, so flowering plants can be defined as those plants which can produce flowers, fruits and seed. Clear? Means the plants, those who produce flowers, fruits and seed. Flowers means फूल, fruits फल और बीज, तीनों की वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, या देते हैं. They are completely different from the non-flowering plants. They are totally different from non-flowering plants. Non-flowering plants like mango tree, mango plants, na? That is the non-flowering plants. Mango plants, okay, apple plants, okay. These are some example of non-flowering plants. They are also called, okay, angiosperm. Okay. Flowering plants are the largest group within the plant kingdom. Means flowering plants are the largest group within the plants kingdom. Means in whole variety of plants, the maximum number of plants are what? Flowering plants. Maximum number of plants are flowering plants. Okay, clear? There are around 260,000 species of flowering plants and about 90% species are identified. Means in the whole world there are 260,000 species, varieties are available, present in our atmosphere, okay, of the flowering plants. Clear? So one by one we'll discuss about these flowering plants. Aquatic plants. Aquatic means water. The plants which are found in water, under the water. Aquatic plants, तो ऐसे पौधे जो जल के अंदर मिलते हैं, पानी के अंदर मिलते हैं. Okay, so aquatic plants also termed as hydrophytes. Hydrophytes are aquatic macrophytes. Okay, they are also called hydrophytes or aquatic macrophytes. Live within watery environment. Within watery environment. मतलब कि जलीय वातावरण में जो पाए जाते हैं, जल के अंदर. Okay, like the lotus. Did you see lotus? Okay, where it is you can find this one under the pond. Okay, under the lake के अंदर. Clear? So lotus. Okay, बोलते ना लोटस, कुकुम्बी का पौधा. ओके, सिंघाड़े का पौधा. इन द इकोसिस्टम, हमारे जो वातावरण में, aquatic plants serve as a food.
and habitat for animals living in the sea. Means the plants just serves as a food, उनके भोजन के रूप में, okay, और उनके प्राकृतिक निवास के रूप में, okay, habitat for the animals living in the sea, समुद्र के अंदर या पानी के अंदर पाए जाने वाले एनिमल्स के लिए किस तरह क्या है, एक गॉड गिफ्टेड फूड है, ओके, हैबिटेट. एंड प्रिवेंट शोर लाइन्स को प्रिवेंट करता है, पॉन्ड्स एंड लेक्स फ्रॉम द इरोजन बाई प्रोवाइडिंग सॉइल स्टेबिलिटी. इरोजन मीन्स अपर्दन से, ओके, कटाव से. क्लियर. प्रिवेंट शोर लाइन्स, पॉन्ड्स और लेक को, ओके, फ्रॉम इरोजन बाई द प्रोवाइडिंग सॉइल स्टेबिलिटी. सॉइल स्टेबिलिटी दे करके मीन्स एक निश्चितता, ओके, स्टेबिलिटी मीन्स एक तरह से स्टेबल सॉइल के फॉर्म में वो प्रिवेंट करता है किसको, पॉइंट्स और लेक को फ्रॉम द इरोजन से, डिफरेंट टाइप ऑफ इरोजन्स. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, एंटीलोप बस. ओके, क्लियर. सो बस झाड़ियाँ ना, झाड़ी वाले पौधे, तो झाड़ियों वाले पौधे. श्रब दैट इज मॉडरेट कंट्रोल्ड टू वेरी deep rooted with wide ecotypic variations. Okay, shrub means झाड़ी वाले जो पौधे होते हैं, what that is moderate, जो moderate किए जाते हैं, कंट्रोल होते हैं. ओके, टू वेरी डीप रूटेड, बहुत ही गहरे रूट वाले, जड़ वाले. ओके, विथ वाइड इकोटिपिक वेरिएशंस. इट इज नॉर्मली 2 to 6 feet in height. Basically height of this type of plants what 2 to 6 feet, 2 से 6 फीट के अंदर होती है. एंड अप टू 8 feet विथ विद द वेजेस सेट, और कील के सेट में होते हैं, नुकीले होते हैं ये पौधे. किस में वेजेस सेट होते हैं, नुकीले कील के सेट में होते हैं. एंड विथ इज नियर अबाउट 8 feet. 3 lobed leaves, और इनकी जो पत्तियां होती हैं वो क्या, lobed leaves होती हैं, मीन्स खंडदार, कटी फटी होती हैं. ओके, Leaves can vary in color from grey green to bright green. इनके जो leaves के कलर होते हैं, ओके, वो क्या होते हैं, डिफरेंट कलर्स में वेरी करते हैं. ग्रे ग्रीन, ओके, टू ब्राइट ग्रीन, चमकीले हरे या ग्रे ग्रीन के फॉर्म में, काही ग्रीन के फॉर्म में. ओके, some plants have branches near the soil. ओके, कुछ पौधों के जो ब्रांच होते हैं, ब्रांच को क्या होते हैं, सॉइल के पास, मिट्टी के पास होते हैं. कि फ्लावर्स ब्लूम इन लेट स्प्रिंग टू अर्ली इन द समर. ओके, मतलब कि समर आने से पहले बसंत ऋतु में ही ये इनके जो फूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ब्लूम होते हैं, खिलने लगते हैं बसंत ऋतु में ही. नाउ एकोनाइट्स आर वन ऑफ द फर्स्ट बल्ब फ्लावर्स. बल्ब के फॉर्म में होते हैं, जैसे बल्ब देखा आपने, ट्यूबलाइट बल्ब होता है ना, बल्ब उस तरह से खुलते हैं. ये देखो बल्ब फ्लावर, ऐसे बल्ब के फॉर्म में. ओके, टू ब्लूम, खिलते हैं, इन द स्प्रिंग, बसंत ऋतु में. ओके, एंड आर फॉर देयर चीयरफुल येलो कलर. ओके, क्लियर. चीयरफुल येलो कलर, और अपने सुंदर पीले रंग के लिए बहुत ज़्यादा ये क्या होते हैं, जाने जाते हैं. ओके, बहुत ही सुंदर दिखते हैं ये. ओके, आर नोन फॉर द चीयरफुल येलो कलर. ओके, क्लियर. नाउ next one, Ageratum. Okay, Ageratum. Okay, Ageratum. It comes in blue, pink, white blooms. 3 colors में these type of flowers are available in our atmosphere. What present? Blue, pink and white. Clear. The taller varieties are best for cutting and displaying in your home. ओके, इनकी जो लंबी तरह की डालियाँ होती हैं, ओके, जो इनके वैरायटीज़ होते हैं, लंबे वैरायटीज़ फॉर्म में पाए जाते हैं, वो हमारे होम्स को, ओके, डेकोरेट करने के लिए, मीन्स डिस्प्ले दिखाने के लिए घर के आगे यूज किए जाते हैं. ओके, बेस्ट होते हैं. वाइल दी डार्क, और इनकी जो छोटे वैरायटीज़ होती हैं, बोने वाले छोटे बेडिंग वैरायटीज़ आर बेस्ट केप्ट इन द गार्डन. हमारे घरों के गार्डन में लगाने के लिए बेस्ट होते हैं बेडिंग वैरायटीज़ ना, बिछाने के लिए. ओके, बिस्तर पे ऐसे डालने के लिए, बिछा के लगाने के लिए. क्लियर. बेडिंग वैरायटीज आर केप्ट केप्ट इन द गार्डन लगाने के लिए. नाउ नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स, बास्केट ऑफ गोल्ड, सुनहरे सोने की टोकरी इसको बोलते हैं. जैसे आपने देखा होगा ना, जिस फ्लावर्स ना
एक फ्लावर आपने देखा होगा, हैव यू सीन दिस फ्लावर ना, गेंदे का फूल देखा ना, कैसे होता है, फील्ड में पूरा फैला होता है ना, तो कैसे दिखता है, लाइक ए बास्केट ऑफ गोल्ड दिखता है, सुनहरा दिखता है, पूरा लगता है कि टोकरी है, कोई सोने की टोकरी है। क्लियर? सो बास्केट ऑफ गोल्ड विथ ब्राइट येलो एंड लो ग्रोइंग फ्लावर्स, नो वंडर वेयर द बास्केट ऑफ गोल्ड गॉट इट्स नेम फ्रॉम। इसमें कोई भी आश्चर्यचकित होने वाली बात नहीं है कि ये सोने की टोकरी, मतलब सोना ही है इसमें। एक्चुअली इट इज नॉट गोल्ड बिकॉज इट्स सो कॉल्ड ड्यू टू इट्स कलर, गोल्डन कलर, इसका सुनहरा रंग होने की वजह से इसको हम बास्केट ऑफ गोल्ड बोलते हैं। क्लियर? ओके। गिवन इट्स शॉर्ट हाइट एंड गोल्डन कलर, दिस मेक्स फॉर परफेक्ट एडिशन टू रॉक गार्डन और जेरिस्केप। ओके, इसकी छोटी हाइट और गोल्डन कलर की वजह से ये बहुत ज़्यादा ही उपयुक्त है। ओके, एकदम जुड़ा हुआ है या रॉक गार्डन एक्सकेप के लिए परफेक्ट है। ओके, परफेक्ट है। क्लियर? किस वजह से? ड्यू टू इट्स शॉर्ट हाइट एंड गोल्डन कलर की वजह से। ओके, नाउ स्टूडेंट्स विल प्रोसीड टू नेक्स्ट चैप्टर। व्हेन प्लांट्स टर्न डेडली मीन्स व्हेन प्लांट्स बिकम्स डेंजरस फॉर अस, कब पौधे जो हैं हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं, प्राणघातक हो सकते हैं। ओके, क्लियर? व्हाट इज द स्टेज? डेडली प्लांट्स। सो सम अदर प्लांट्स आर गिवन। प्लांट्स प्ले a very important role in our lives. We know that now, because a lot of plants, okay, in our atmosphere provides fruits, okay, leaves. We will use their leaves and fruits for different purposes. Okay, clear? So that's we can say that the plants play a very important role in our lives. They provide us with food, shelter and air to breathe. Clear na? Okay, they provide foods that we can eat, shelter to just save our life, okay, from different natural disasters, phenomena, okay, and air to survive in the atmosphere. Okay, to live they provide the air. Okay, but here are some plants that are not safe to eat or even touch. But some of the plants are there here which is not just safe for us, they are so dangerous for us. Okay, they are not safe to eat or even they are not safe even to touch. मतलब हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या है, प्राणघातक है, हानिकारक है, अंटिल उन्हें छूना भी बहुत ज़्यादा क्या है, डेंजरस है, हार्मफुल है हमारे लिए। क्लियर? सो वन बाय वन वी विल डिस्कस। सो फर्स्ट ईयर, इट इज ए हाईली पॉइजनस मशरूम, बहुत ज़्यादा ये क्या है, जहरीला होता है मशरूम। ओके, इट इज ए रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑलमोस्ट 90% ऑफ दैट फ्रॉम ईटिंग फंगी। ओके, 90% लोग जो इस तरह के मशरूम्स को खाते हैं, ईट करते हैं, उनके लिए क्या होता है, पॉइजनस होता है। ओके, उनके मृत्यु का कारण बनता है, डेथ। ओके, रीजन फॉर डेथ। क्लियर? इट पॉइजन्स कॉजेज सीवर, डायरिया एंड वोमिटिंग। डायरिया, ओके, डायरिया एंड वोमिटिंग, these two types of disease causes by these plants. Okay, poisonous plants. What? Diarrhea means dust आना, vomiting means उल्टी होना. Okay, so name of this plant is what? First one, the death cap. Name of this plant is what? Death cap. Okay, next one, it is also known as ladies globe. Ladies globe. Okay, this one, ladies globe. Symptoms, okay, of this its poisonings include a low pulse rate, okay, nausea, vomiting and cardiac arrest. इसके सिम्टम्स क्या है? हमारा जो पल्स रेट, अगर हम इसको टच करते हैं या बाय मिस्टेक वी, इफ एनी टाइम वी ईट दिस प्लांट, सो व्हाट वी सफर्स, व्हाट जस्ट सिम्टम्स जस्ट वी आर शोइंग, आवर बॉडी शोइंग, कौन कौन सिम्टम्स शो करता है? हमारा पल्स रेट क्या होगा, वो लो हो जाएगा। ओके, नोजिया हो जाएगा, हमको अच्छी मसलाएँ लगेगा। क्लियर? वॉमिटिंग होगी। ओके, क्लियर? सो दीज टाइप्स ऑफ जस्ट डिसीज जस्ट फ्रॉम दिस we will suffer. Okay, so symptom of its poisoning includes what? A low pulse rate, nausea, vomiting, okay, cardiac arrest. Clear? So name of this particular deadly plants, what? Purple foxglove.
purple foxglove. Purple means its color is looks like purple color. Clear? Now next one, see, you can easily identify these plants na. What looks like a potato na? Potato, आलू का दिख रहा है ना ये पौधा. दिस प्लांट इज वेरी फेमस एज फूड. हम इसे खाने के लिए बहुत ज़्यादा हमारे खाने में ये यूज होता है ना, फेमस है. इफ टर्न्स ग्रीन देयर आर पॉसिबिलिटीज दैट इट मे कंटेन्स सोलाइन विच इज ए पॉइजन. जब ये हरा होता है मीन्स या जब ये रॉ होता है, कच्चा होता है, हरा मीन्स ग्रीन, सो इट कंटेन्स ए पॉइजन, टॉक्सिक पॉइजन. व्हाट इट इज कॉल्ड? सोलामिन, सोलानाइन. ओके, सो नेम ऑफ दिस वन व्हाट? पोटैटो. Now next one, it is used by the South American Indians tribes. ये साउथ अमेरिकन इंडियंस जो जनजातियां हैं उनके द्वारा ये यूज किया जाता है. कब? When to make their arrows poisonous for the hunting. जब वो शिकार करते हैं तो अपने जो एरोज होते हैं जो कि बो और एरोज, तो जो एरोज हैं बो के उनको पॉइजनस करने के लिए, जिससे इजली दे कैन हंट दी एनिमल्स. Easily they can hunt the animals and just what? Kill the animals by using this poisonous arrows. Clear? Next one, it is also known as Nux vomica. Okay, poison nut. मूंगफली की तरह होता है, छोटा छोटा दाने की तरह होता है, बट इट इज वेरी पॉइजनस. क्वेकर बटन्स या छोटे छोटे बटन्स के फॉर्म में इट इज अवेलेबल इन आवर एटमॉस्फेयर, स्मॉल बटन्स के फॉर्म में एंड नट के फॉर्म में, बट टू मच पॉइजनस, वेरी पॉइजनस. इट इज फाउंड इन इंडिया एंड म्यांमार. वेयर इट इज फाउंड? इंडिया एंड म्यांमार. ओके, वर्मा. ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ दिस प्लांट्स कंटेन पॉइजन. मोस्टली ऑल द पार्ट्स ऑफ दिस प्लांट कंटेन पॉइजन. मतलब इसके हर पार्ट में, फ्लावर्स में, फूड में, ओके, फ्रूट्स में, ओके, सीड्स में, इन ईच एंड एवरी पार्ट्स कंटेन्स ए टॉक्सिक पॉइजन. क्लियर? इसके हर पार्ट में क्या होता है? पॉइजन होता है. क्लियर? सो नेम ऑफ दिस प्लांट्स इज व्हाट? फिफ्थ वन स्टूडेंट्स, ओके, कोचला ट्री. कोचला ट्री. ओके, सो नाउ लास्ट वन, दिस प्लांट इज नेटिव टू यूरोप. ये यूरोप का एक बहुत ही देसी प्लांट है, ओके, पौधा है. क्लियर? नॉर्थ अफ्रीका एंड वेस्टर्न एशिया मीन्स दिस इज द बेसिकली फेमस इन आर फाउंड इन यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका एंड वेस्टर्न एशिया. इट्स फॉइलेज, इसकी जो पत्तियां होती हैं, लीव्स एंड बेरीज, इसके जो जामुन होते हैं, ओके, बेरीज आर एक्सट्रीमली टॉक्सिक, बहुत ज़्यादा अत्यंत ही जहरीले, टॉक्सिक. ओके, इट कंटेन्स ए पॉइजन कॉल्ड एट्रोपाइन. इसके जो पॉइजन होता है उसका नाम क्या है? एट्रोपाइन. ओके, इट हैज़ ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ यूज एज मेडिसिन. इसको बहुत समय से, लॉन्ग टाइम से, वेरी लॉन्ग टाइम से वी आर यूजिंग, और जस्ट केमिस्ट आर यूजिंग फॉर प्रिपेयरिंग द मेडिसिन. दवाओं के बनाने में इसको यूज किया जा रहा है बहुत ही लंबे समय से, इतिहास से. ओके, वेरी लॉन्ग टाइम हिस्ट्री में. ओके, सो नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लांट इज व्हाट स्टूडेंट्स? डेडली नाइटशेड. डेडली नाइटशेड. Okay, students, so you revise these two chapters. Okay, clear? Thank you.